So let's start with the correction of this question, children. The question simply says that G, S and T are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. On 31st March, they decide to admit W as a partner for 1/5 share. General reserve का credit balance है children. Thereafter profit and loss account का debit balance है. And contingency reserve भी by default credit ही होता है. So for closing credit balances, what we need to do, children? Debit them. Debit them. Very good, very good, very good. We'll debit them. So entry would become general reserve account debit to G's capital, to S's capital, to T's capital. I suppose लोगों ने capital word जरूर लिखा होगा. So value is 30,000. 3:2:1 में divide करेंगे तो children it will come 15,000, 10,000 and 5,000. Correct? Understood? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Profit and loss account, children, debit balance है. How debit would be closed? By By crediting. crediting it. By Okay. crediting. So entry will be G's capital account debit, S's capital account debit, T's capital account debit to profit and loss account. So value is 12,000. 3:2:1 में divide करेंगे तो it will be 6,000, 6,000, 4,000, 4,000, 2,000, Very 2,000. good, very good. Contingency reserve, children. Again credit balance. तो इसको close करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? Do answer. Debit it. Debit. Very good. Contingency reserve को आप debit करेंगे to G's capital, to S's capital, to T's capital. 18,000 को 3:2:1 में divide कर दीजिए. 9,000, 6,000 and 6,000 3,000. and 3,000. Is this much heard well? Yes, Yes, sir. चलिए, अब कुछ बच्चे यहाँ पे ये सोच रहे होंगे सर कभी कभी लिख के आता है कि W as a new partner को एडमिट तो किया बट पार्टनर्स डू नॉट वांट टू चेंज जनरल रिजर्व, पीएल और कंटिजेंसी रिजर्व. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आपने अभी नहीं पढ़ा है, तो अभी आप उसके बारे में जरा भी परेशान मत होइए. चलिए, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 15 चिल्ड्रन. वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की वैल्यू आपको दी हुई है 60,000 रुपीज बैलेंस शीट में. एंड सबसे पहला केस when no information is given. Second case when there is no claim. Third case में claim है 30,000 का. Fourth में claim है 60,000 का. और fifth case में children claim है 75,000 का. So when children no information is given and when there is no claim, you can have a common solution. हम WCF को close करके partners में distribute कर देंगे and the partners would be old partners only. Can anybody answer the journal entry for this? Workman compensation reserve WCR account debit to old partners capital account. Old का कुछ नाम है बच्चे, कुछ नाम है. इसके पापा भी Capital account, Q's capital account. to P's capital account to Q's capital account. जिन्होंने फेविक्विक शेक पिया है थोड़ा सा पानी पी लें तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा. एंड प्लीज आंसर चिल्ड्रन. सो इट्स 48 and 12 if I'm not wrong. एक ऑल्टरनेटिव भी है, कभी कभी ऑथर्स बुक्स में लिख देते हैं when no information is given के केस में या तो आप ये एंट्री पास करिए जैसे हमने की, else अगर आप ये एंट्री नहीं पास करना चाहते तो आप इस WCR को न्यू बैलेंस शीट में शो कर दीजिए, वो भी सही है. एंड व्हेन देयर इज नो क्लेम तब तो आपको सिमिलर एंट्री पास करनी ही करनी है. समझ में आ गई बात? Yes, Yes, yes. sir. Yes, sir. चलिए, मूविंग अहेड. क्लेम अमाउंट इज 30 चिल्ड्रन और बैलेंस शीट में पहले हमें कितना नजर आ रहा है? 60,000. वेरी गुड. तो मैं आपको दोनों अल्टरनेटिव्स बता देता हूँ, स्वाद अनुसार आपको जो अच्छा लगे आप अप्लाई कर लीजिएगा. मार्क्स दोनों पे ही मिलेंगे, नॉट टू वरी. सिंपल सा अल्टरनेटिव ये है कि आपका WCR 60 है एंड नाउ इट इज 30, तो WCR 30 से कम हो गया, तो आप इस WCR को फाइनली डेबिट कर लीजिए 30 से and necessary credit would be given to the capital account of Mr. P and Q. So we'll write to P's capital account to Q's capital account. So 30,000 को जब आप डिवाइड करेंगे 4:1 में चिल्ड्रन, तो ये फैक्टर आएगा 30/5 is 6, 24 and 6,000. 6,000.
मैं ऑल्टरनेटिव भी आपको एक बता देता हूं, अगर आप वैसे करना चाहें तो वैसे कर लीजिएगा। WCR को 60 से डेबिट कर लीजिए, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड को 30 से क्रेडिट, टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल, इट्स 24 and 6। इंस्टेड ऑफ P and Q आप रिवैल्यूएशन को भी क्रेडिट कर सकते हैं, बट अवॉइड इट। देन इट सेज कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन पे क्लेम 60 का है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक ऑल्टरनेटिव तो ये है। दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है, आप WCR को 60 से डेबिट कर दीजिए और क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ WCR को 60 से क्रेडिट कर दीजिए। बैलेंस शीट में सिर्फ नाम बदल जाएगा। अर्लियर इट वाज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, नाउ इट वुड बिकम क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन। सुनाई पड़ी बात? Yes, sir. Now it is 75 children, बैलेंस शीट में है 60। By what amount is it increasing? 50,000. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैं आपको दोनों ऑल्टरनेटिव्स बता देता हूं। द फर्स्ट वन इज आप WCR को क्रेडिट कर दीजिए 15,000 से, एंड चिल्ड्रन P एज वेल एज Q को आप डेबिट कर दीजिए। 4:1 में डेबिट करना है, तो 4 + 1 is 5, तो ये हो जाएगा 12,000 एंड 3,000। और अगर आप इस ऑल्टरनेटिव से नहीं चलना चाहते तो नो प्रॉब्लम, debit WCR with 60, P's and Q's capital with 12 and 3, और claim for workman compensation को 75 से क्रेडिट कर दीजिए। समझ में आई बात? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. सबको क्लियर हो गया? क्लियर? Yes, sir. sir. कोई क्वेरी तो नहीं किसी की? Yes. सो Sir. अगर किसी ने ऑल्टरनेटिव्स नोट नहीं किए हैं, एक ही तरीके से किया है, तो ऐसा जस्ट ऑल्टरनेटिव भी लिख लीजिए। Going ahead, let's proceed further. Question number 16, children, all about investments. So balance sheet shows investments at rupees 3 lakhs and investment fluctuation fund at 90. The first case, when it says if there is no information, so no information mein there are two cases: don't do anything or simply close this 90,000 rupees. So 90,000 appears on the liability side. It will be closed by transfer to the capital accounts of ABC, children. What could be the journal entry? Any guesses? Investment fluctuation fund Investment account debit to fluctuation A's fund capital debit. account, B's capital account, and C's. Very good. It's IFF debit to A's capital account, to B's capital account, to C's capital account. When we are distributing anything in among old partners, what would be the ratio, children? Old ratio. Simple as that. Old profit sharing. So 2 + 2 + 1 is 5. 90,000 divided by 5 is 18,000, if I'm not wrong. Yes, sir. This would be 36. This would also be 36, and this would be 18. Got the answer, children? Yes, Yes. Yes, sir. Second, when it Yes, is sir. valued at 3 lakh rupees, मतलब there is no change still. Again, the entry would remain same जो आपने case 1 में की है. It's the same entry, children. Market value is 260. It's a gain or loss, children? Sir, a loss. It's a Loss. loss. How much loss? 40,000. 40,000. 40,000. Very good, very good. So the loss won't be now debited to revaluation, rather it would be accounted from this only. So entry would be investment fluctuation fund account debit to Investments account. investments account, Investments account. 40,000 rupees, children. And thereafter we have 90 here. Out of that 40 we have borne. How much is the balance in investment fluctuation fund? 50,000. 50,000. Simple as that. This 50 IFF would be distributed among A, B, and C. In which ratio, children? Old ratio. Old profit Old sharing ratio. profit sharing ratio. So it will be 20, 20, and 10. Now it says the market value is rupees 2 lakhs. What's the loss, children? 1 lakh. 1 lakh. But 1 we lakh. have the cushion to bear the loss in the name of investment fluctuation fund of how much, children?
90,000. So 90 would be born out of IFF. Remaining 10 could be debited to revaluation. Revaluation. And if you do not want to debit it to revaluation, children, you can debit it to the capital account of old partners. समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Now, children, investments are valued at 350. It's a gain or loss? Gain. Gain, sir. Very good. Gain. What is the amount of gain, children? 50,000. 50,000. Had it been no IFF appearing in the question, we would have done the entry investments account debit to revaluation. But now we'll be doing investments account debit to investment fluctuation fund. So earlier the fund had credit of 90 and now additionally it is credited with 50. So what's the total value of fund, children? 1,40,000. Very good, 1,40,000. So now we'll be distributing this 1,40,000 of fund among A, B, and C. So we'll divide 1,40,000 by 5. It comes to 28,000, children. For A and B, it would be 56 each. For C, it would be 28. समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. Children, understood? Yes, Any sir. queries to anybody? No, No, sir. sir. No, sir. Moving ahead, children, moving ahead. So let us have a full question on this, children, a full question. So we'll understand the composition better. ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा ठीक लग रहा है बिकॉज कैपिटल एडजस्टमेंट अभी क्यों नहीं पढ़ा है क्योंकि तो इसलिए हम एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें कैपिटल एडजस्टमेंट ना हो और एक दो चीजें मैं ऐड ऑन आपको करवाऊंगा क्वेश्चन में. चलिए चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 19th must be visible to everybody. Is the visibility okay, children? Yes, sir. Yes, sir. चलिए. Yes, sir. प्लीज पुट द क्वेश्चन नंबर इन योर क्लास वर्क कॉपीज. और इस क्वेश्चन में मैं एक चीज ऐड ऑन आपको करवाना चाहता हूं बिकॉज कभी कभी वो चीज क्वेश्चन में आती है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं. फर्स्ट एडजस्टमेंट सेज चिल्ड्रन Z will bring 120 for his capital and 20 as premium for goodwill out of rupees 25,000. And in continuation, right, putting a comma, half of premium is withdrawn. इस चीज को ऐड ऑन कर लीजिए. क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाइए, बट मैंने आपको जर्नल का भी फॉर्मेट बनवाया हुआ है तो मैं चाहूंगा कि आप जर्नल एंट्रीज भी लिखें चिल्ड्रन. सो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज NPSR, फिर कैलकुलेट करेंगे SR एंड देन विल कंटिन्यू विद दिस. रेडी एवरीबॉडी चिल्ड्रन? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, पूरा क्वेश्चन स्क्रीन पे होगा आपके सामने. लेट्स कंटिन्यू चिल्ड्रन. सो X Y Z पार्टनर्स हैं, सॉरी X एंड Y 3:2 में शेयर कर रहे हैं. Z को 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया, कुछ नहीं दिया है तो इट इज एप्लीकेशन ऑफ केस 1 ओनली. सो चिल्ड्रन 1/4 अगर पार्टनर मिस्टर Z को हम शेयर दे रहे हैं तो व्हाट इज द रिमेनिंग शेयर? 3/4. वेरी गुड. सो लेट द प्रॉफिट बी 1. 1 minus 1/4 is what, children? 3/4. 3/4. 3/4 में X और Y दोनों का शेयर निकालेंगे. 3/4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 3/5 से और 2/5 से, तो इट बिकम्स 9/20 एंड दिस बिकम्स 6/20. और Z का 1/4 है तो 5/5 से मल्टीप्लाई करके we'll get this as 5/20. So X is to Y is to Z. NPSR is 9:6:5. SR कैसे निकालते हैं सबको पता है, बट फॉर कन्वीनियंस पर्पसेस वी नो कि SR भी केस 1 में वही होता है जो OPSR होता है, दैट इज 3:2. यहाँ तक की स्टोरी सबको क्लियर हो गई? Yes, sir.
Yes, sir. Sir. Do we have anything on the asset side titled as accumulated loss, children? कोई PL, accumulated loss, advertisement, suspense जैसा कुछ दिया है हमको? No, sir. No, sir. Sir. Liability side, children, do we have anything like general reserve, PL, contingency reserve, capital No, reserve, sir. workman compensation? No, sir. No. तो आप तो जर्नल में एंट्रीज करेंगे, मैं भी साथ साथ कर रहा हूँ. Z will bring 120 as his capital and 20 as his share of premium. Do we see that any goodwill appears on the asset side of balance sheet, children? No, sir. क्या बैलेंस शीट की No, asset sir. side में कोई भी goodwill आपको नजर आ रही है? No. No, sir. So children, when no goodwill is appearing, can we write it off? No, sir. No. So what would be the journal entry, children, for bringing capital and share of goodwill? Answer. Bank account debit. Bank account debit to Capital account to premium for goodwill account. To premium for goodwill. Very good. Bank account debit to Z's capital to premium for goodwill. In capital, we'll write 120. In premium, we'll write 20. And in bank, how much, children? 140. 140. But he brought how much as premium money, children? कितना पैसा लेके आ रहा है? 20,000. 20. 20,000. But I have edited the question as said that total amount is rupees how much that he was supposed to bring. 25,000. 25,000. तो ये कुछ होता है वाला केस हो गया और हम इसकी जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं. Entry would be, children, premium for Premium for goodwill account debit for the paid share, that is 20,000, and for the unpaid share we'll make him a debtor. Correct? Z's current Yes. account. Yes, sir. That's current account to excess capital to Vice Vice capital. 3:2 में बच्चों जब आप डिवाइड करेंगे इसे तो it will come to 15 and 10. 10,000. जर्नल में दनादन एंट्रीज देखते जाइए. सुपर स्पीड. Machinery depreciated by 10%. So children, journal entry for this would be what? Answer? Revaluation account debit to Revaluation account debit to machinery. Valuation account debit to machinery. Value of machinery Excuse in me, the sir. balance sheet is 80,000. 10% of 80,000 is what? 8,000. 8,000. 8,000. And then it says ki land and building to be appreciated by 30,000 rupees. By 30,000 लिखा है बच्चों. 30,000 से बढ़ गया. What will be the entry for appreciation to be recorded? land Land and building. and Land and debit to building account revaluation debit to account. revaluation account. 30,000. The value is 30,000. Stock was overvalued. मतलब ये जो स्टॉक की वैल्यू आपको नजर आ रही है ये अपनी एक्चुअल वैल्यू से 20 ज्यादा है. आई रिपीट चिल्ड्रन, ये अपनी एक्चुअल वैल्यू से 20 ज्यादा है. तो स्टॉक की मरम्मत कैसे करेंगे आप? Revaluation account debit to Revaluation stock account. account. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. 5% का प्रोविजन क्रिएट करना है. दिमाग की बत्ती जलाइए. मान लीजिए बच्चों कि क्वेश्चन आपको कुछ ऐसा देता, 45,000 less 5,000, what's the answer? 40,000. 40,000. 40,000. तब आप 5% कैलकुलेट करते इस वैल्यू का चिल्ड्रन और अकाउंटिंग करते, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. डायरेक्टली कैलकुलेट 5% ऑफ 40,000 कितना आएगा चिल्ड्रन? 2,000. 2,000. वेरी गुड. एंड व्हाट्स द जर्नल एंट्री फॉर दिस? Valuation account debit. Revaluation Valuation account debit to provision for doubtful debts. Revaluation account debit to provision for doubtful debts. 5% would come to 2,000. Salary outstanding. Do you see any salary outstanding on the liability side of balance sheet, children? आपको No, कोई sir. सैलरी आउटस्टैंडिंग नजर आ रही है? नो. तो दिस लाइबिलिटी हैज टू बी क्रिएटेड. क्या जर्नल एंट्री करेंगे? Revaluation account debit to Revaluation to salary outstanding outstanding. salary. वेरी गुड. Revaluation account debit to salary मत लिखिएगा, it will go wrong. To outstanding salary. समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Clearly understood? चलिए Yes, sir. अब स्टोरी को थोड़ा सा ट्विस्ट करके देखते हैं और प्रॉफिट लॉस निकालते हैं. Sir, रिवैल्यूएशन, half of the premium withdrawal, sir. हाँ उससे प्रॉफिट लॉस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो मैंने कहा पहले प्रॉफिट लॉस की एंट्री बता दें फिर उसमें चलते हैं. वैसे तो ये एंट्री प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमको करनी चाहिए थी, कोई फर्क नहीं पड़ता. रिवैल्यूएशन क्रेडिट है 30 से चिल्ड्रन, देन इट इज डेबिटेड विद 8, डेबिटेड विद 20, डेबिटेड विद 5 and debited with 2. Where do you find excess, children? Debit or credit? Debit.
Debit, sir. तो क्रेडिट में तो सिर्फ 30,000 है रिवैल्यूएशन का, और कुछ नहीं है। डेबिट में चिल्ड्रन एक ही 8,000 है, देन इट इज 28 plus 2 30 plus 5 35,000. So debit excess or credit excess? Debit. It's a loss. दोनों साइड को इक्वेट करने के लिए आप रिवैल्यूएशन को 5,000 से क्रेडिट कर देंगे एंड x एंड y को चिल्ड्रन OPSR में आप डेबिट कर देंगे। तो एंट्री वुड बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। Heard this well? Yes, sir. Yes, sir. Half of the premium is withdrawn, children. Entry would be excess capital account debit, Y's capital account debit to what? To bank Bank. account. Very To good. bank. 20,000 का हाफ कितना होता है बच्चों? 10,000. 10,000. इसको 6 और 4 में डिवाइड कर दीजिए। कभी भी ये मत सोचिएगा 15 और 10 का हाफ करेंगे, नो, इट वुड ऑलवेज गो रॉन्ग। ऐसा कभी नहीं होता बच्चों। बी क्विक, बी क्विक, बी क्विक। आई होप सो सब लोग रिवैल्यूएशन में एंट्रीज पोस्ट कर लेंगे। चलो, Yes, Yes. sir. चलो, इन बैलेंस शीट कैश इज गिवन, तो जहां पे भी हमने बैंक लिखा था लेट्स राइट कैश देयर। अब ठीक हो गया। ओके, चेक आउट रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलो, द कंटेंट ऑफ मशीनरी ऑन द डेबिट साइड, लॉजिक सबको याद है, असेट का डिक्रीज एंड चिल्ड्रन लायबिलिटी का इंक्रीज ऑन द डेबिट, whereas asset का decrease and liability का increase on the credit. Machinery के लिए it was 8,000, land and building के लिए on the credit 30,000, उसके बाद so called stock के लिए on the debit 20,000, thereafter PFDD provision for doubtful debts 2,000 on the debit, कॉमा जरूर लगाइएगा, and then salary outstanding also on the debit, it is 5,000. So debit is 35, credit is 30. We'll write by excess capital by Y's capital. ठीक, so चलो OPSR में डिवाइड कर देंगे हम इसे। This would be 3,000 and 2,000. People understood, children? How do we prepare this? Yes, sir. Yes. चलिए, Yes, sir. लेट्स प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स और उसके बाद बनाएंगे बैलेंस शीट। चलिए बच्चों, फॉर्मेट ऑफ कैपिटल अकाउंट स्टार्ट करते हैं बनाना। थ्री पार्टनर्स, थ्री कॉलम्स, पर्टिकुलर्स X, Y and Z, particulars X, Y and Z. Children, if we prepare any ledger account, first and foremost, we write opening balance in it. If it belongs to the category of asset, capital, liability, ये बड़ा भयंकर ब्रह्मास्त्र मैंने आपको दिया है। कैश बुक में भी ब्रह्मास्त्र 11 मिला होगा, ओपनिंग एंट्री में भी ये ब्रह्मास्त्र आपको 11 मिला होगा। सो कैपिटल मिस्टर X एंड Y की आपको किस साइड पे नजर आ रही है? ऑन द लाइबिलिटी साइड और असेट साइड? चिल्ड्रन, Liability side. liability side. Very good. So what do we put first and foremost, children? By balance brought down. My balance brought down. Excellent answer. और पूरी स्पेलिंग लिखिएगा बैलेंस की, बैल लिख के मत छोड़ दीजिएगा। It is 1,80,000 rupee and 70,000 rupees. So we'll be putting 180 and 70. Some students have a practice of putting the value in the column of new partner only, but because वो भी capital, उसका opening balance कुछ है ही नहीं, तो how can we write that? वैसे तो लोगों को पता है, बट मैं एंट्री के हिसाब से मूव करना चाहता हूं। The first journal entry was, children, cash account debit to Z's capital to premium for goodwill. So how this entry can be posted in Z's capital account, children?
What will By write? cash account. By cash account. Cash account. Very good. What's the value? 1 lakh 20,000. 20,000. 20,000. प्रीमियम फॉर गुडविल का लेजर आप बना नहीं रहे, इसलिए उसमें आप कुछ लिखेंगे नहीं। आपको चलो नजर आ रहा होगा आपकी सेकेंड एंट्री यहाँ पे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट एक्सेस करंट अकाउंट डेबिट, सॉरी जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल टू वाइस कैपिटल। अब इस एंट्री को पोस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होगी आपको, तो पोस्टिंग करते टाइम आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। इस एंट्री को दो टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। वन इज PFG 2x2y, another is Z's current account 2x2y। करंट अकाउंट में आप 5,000 रुपी, 3,000 एंड 2,000 लिखेंगे, एंड हेयर यू विल पुट 20, 3:2 में डिवाइड कर देंगे आप इसे, तो ये आएगा 12,000 एंड 8,000। सो यू नीड टू पोस्ट दीज टू एंट्रीज सेपरेटली, नहीं तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। कभी कभी बच्चे लिखते हैं बाय PFG एंड Z's करंट अकाउंट, टोटल बेवकूफी है चिल्ड्रन, टोटल बेवकूफी। सो वी विल बी पुटिंग बाय premium for goodwill, it's 12 12,000, 8,000. and 8. Then children, by Z's current account, it's 3,000 and 2,000. 2,000. Don't say कि सर यहाँ पे लिखा by Z, क्या Z में 2x और 2y नहीं लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट नहीं लिखा ना, करंट लिखा है, तो काउंटर एंट्री कैसे हो सकती है? Had there been some accumulated gains or losses, we could have written them accordingly. Then आपकी एंट्री थी चिल्ड्रन गुडविल को विड्रॉ करने की, excess capital, wise capital to bank. So on the debit side, you will be putting to bank account. It is 6,000 and 4,000. Sir, to cash account. हाँ sorry, to cash account, because बैलेंस शीट में कैश दिया है। जर्नल के भी सीक्वेंस में इसकी मरम्मत कर लिया जरा, यहाँ पे भी टू कैश लिख देते हैं इंस्टेड ऑफ पुटिंग बैंक। सो वी हैव डन दिस एंट्री, ये भी हो गई, ये भी हो गई। रिवैल्यूएशन वाली एंट्रीज का सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट में कैपिटल अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एंट्री लॉस वाली पोस्ट होगी। Where it was XY to revaluation, तो आप लिख देंगे to revaluation account, it's 3,000 and 2,000 children. That's it. That's it children. Yes, sir. सो शॉर्टेज sir. आएगी डेबिट साइड में, आप लिखेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। ये तो सब बच्चे सही करते हैं, बट बेचारे 11th क्लास थोड़ा सा भूल जाते हैं 12th में आके बच्चे। नाउ वील शो द टोटल चिल्ड्रन ऑन द कॉमन लाइंस ऑन बोथ द साइड्स, एंड देन बिलो द टोटल वील बी पुटिंग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बिकॉज अब इस साल से क्वेश्चंस का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है। इवन इन IC एंड CBSE 8 नंबर के क्वेश्चन खत्म हो गए CBSE में, 10 और 12 वाले IC भी खत्म कर देगा। आपको क्वेश्चन पार्ट्स में पूछे जाएंगे, एंड CBSE ने तो अपने सैंपल पेपर में भी लिख दिया है दैट रिवैल्यूएशन के साथ हम कैपिटल अकाउंट आपसे पूछेंगे। तो तीनों चीजें अब बनाने को तो नहीं आएंगी, बट अगर क्वेश्चन बहुत छोटा हुआ तो पूछ सकते हैं। सो ये हो गया बच्चों 195, दिस इज 80 and this is 120. Again children, 195, 80 and 120. So children यहाँ पे तो 120 ही आ जाएगा without any change. 4 and 2 6 माइनस हो गया 80 में, तो बचा 74, and 9 माइनस हो गया तो बचा 86. Similarly आप सी ऑफ करके इसे घर के बाहर तक छोड़ के आएंगे, दैट इज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 186, 74 and 120. Like this we happen to prepare capital accounts. Be quick to this. If there is any query, please ask. चलो भाई, so just remember these three balances, और इसी बैलेंस शीट के कंटिन्यूएशन में
हम बैलेंस शीट बना लेंगे चिल्ड्रन। चलिए लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स नजर आ रहे हैं, isn't it चिल्ड्रन? Yes, sir. चलिए क्रेडिटर्स का कोई एडजस्टमेंट था हमारे पास बच्चों? No, No, sir. sir. नो, नॉट एट ऑल। क्रेडिटर्स का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था। तो क्रेडिटर्स का जब कोई एडजस्टमेंट नहीं था तो हम क्रेडिटर्स की वैल्यू को सेम रहने देंगे 50,000। एनी एडजस्टमेंट फॉर बिल्स पेबल वी हैड चिल्ड्रन? No, No, sir. sir. No, sir. No, sir. नॉट एट ऑल। बिल्स पेबल का भी हमारे पास कोई एडजस्टमेंट नहीं है। चलिए तो बिल्स पेबल की भी वैल्यू को हम नहीं टच करेंगे। देयर आफ्टर चिल्ड्रन हमारे पास कैपिटल की वैल्यूज न्यू आ चुकी हैं। सो वील पुट द न्यू वैल्यूज ऑफ कैपिटल फॉर x, y and z. What was the balance of capital coming for x children? 1,86,000. 1 lakh 86,000. 86,000. 86,000। चलिए तो कैपिटल की वैल्यू x की लिख लेते हैं 186। फॉर y it was coming how much? 74,000. 74,000. 74,000 and for z it is 120। ऐड कर लीजिए बच्चों तीनों को। 3,80,000. 3,80,000 and then we have so called asset side पे आइटम्स क्या क्या लिखने हैं हमको, लेट्स सी। Sir, outstanding नहीं salary. नहीं, पहले हम बैलेंस शीट के अंदर के आइटम्स देखेंगे और उसके बाद एडजस्टमेंट्स पे चलेंगे, नहीं तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा, गलती हो जाएगी हमसे। ओके तो ये लॉजिक फॉलो करिएगा सब लोग। चलिए लाइबिलिटी में और तो कुछ है नहीं हमारे पास। देन चिल्ड्रन असेट साइड में वी हैव लैंड एंड बिल्डिंग। एनी एडजस्टमेंट फॉर लैंड एंड बिल्डिंग वी हैड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. व्हाट चिल्ड्रन, व्हाट? Plus 30,000. Plus 30,000. Plus 30,000। तो वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वुड बी हाउ मच? 1,30,000. 1,30,000। चलिए 1,30,000। मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड बाय 10%। तो मशीनरी की वैल्यू चिल्ड्रन कितनी हो जाएगी 10% जब आप उसे 72,000. 72,000. 72,000 would be the value of machinery. स्टॉक ओवर वैल्यूड बाय 20। तो स्टॉक की वैल्यू को भी आपको गिराना पड़ेगा, ये अपनी 80,000. एक्चुअल वैल्यू से 20 80,000. ज्यादा है। सो दिस वुड नाउ बिकम ₹80,000। डेटर्स पे बच्चों 5% का प्रोविजन है, तो इट इज 40 लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000 2,000. and the value would 38,000. become how much? 38,000. 38,000। यहां तक स्टोरी क्लियर हो गई सबको? Yes, sir. Yes, sir. कैश चिल्ड्रन, व्हाट वाज द ओल्ड वैल्यू ऑफ कैश? 10,000. 10। 120 न्यू पार्टनर लेके आ रहा है, व्हाट इज कॉल्ड एज कैपिटल, एंड 20 प्रीमियम, तो 150 हो जाएगा चिल्ड्रन। Yes, sir. चलिए 10,000 drop भी अब हुई है. देखते हैं So और 10,000 एडजस्टमेंट बचा कि नहीं। Z के लिए लिखा था हमने कि ये 25 में से 20 लेके आया है, तो 5,000 रुपी से ये हमारा डेटर बन गया। सो वील बी पुटिंग Z's करंट अकाउंट। देन ये एडजस्टमेंट दोनों हो गए, ये भी दोनों हो गए, ये भी हो गया, ये भी हो गया। सैलरी आउटस्टैंडिंग चिल्ड्रन will appear on the liability side with ₹5,000। समझ गए सब लोग? Yes, sir. सो Sir, for cash, we'll कैश में कुछ गड़बड़ी हो गई? बताइए बताइए बताइए। 140 it will be. withdraw हुआ है. 10,000। अच्छा हाँ, हाफ ड्रॉ भी तो किया था गुडविल, ठीक 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 ठीक, हाँ हाफ गुडविल ड्रॉ भी तो की थी, वो तो भूल ही गए। 140, दैट्स इट। Yes, sir. 1,30,000 plus 72,000 plus 80,000 plus 38,000 plus 1,40,000 plus 5,000. It becomes 4,65,000. 465 on the asset. Probably liability पे भी इतना आ जाना चाहिए। Yes, sir. 380 plus 5, 50, 60, 70 and 80. It's coming 4,65,000 children. चलिए सबको बात समझ में आ गई? हाउ वी प्रिपेयर दिस चिल्ड्रन? Yes. चलिए। Yes, sir. Yes, sir.
सो चलिए, ये जो कैपिटल आपको नजर आ रही है, व्हाट इज टाइटल्ड एज 180, 74 एंड 120, अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये कैपिटल एनपीएसआर ऑफ 9:6:5 के प्रपोर्शन में है चिल्ड्रन? No, sir. Not at all. So this could be the cause of dispute in near future. To avoid this children, हमें इनकी कैपिटल्स को एडजस्ट करना चाहिए. So आप अपनी कॉपी में एक 2 लाइन का कॉम्पोजिशन लिखिए. The capitals of old partners may not be congruent with their profit sharing ratio, As a result, there may occur certain disputes among the partners with respect to their capitals. So partners कहेंगे कि भाई हमारी कैपिटल हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से नहीं है. Some partners may have more profit but उनका कैपिटल कम होगा. Some partners may have less profit but उनका कैपिटल ज्यादा होगा. तो इस डिस्प्यूट को अवॉइड करने के लिए हमें इनकी कैपिटल्स को एनपीएसआर में एडजस्ट करना पड़ेगा. तो सबसे पहले हम एक लॉजिक ये अप्लाई कर रहे हैं. इफ मिस्टर जेड्स कैपिटल इज 120 फॉर 1/4 शेयर, फुल 1 शेयर की कैपिटल कितनी होगी? तो ये फॉर्मूला यूनिटरी मेथड से डिराइव हुआ है कि 1/4 शेयर की कैपिटल अगर 1,20,000 है तो फुल 1 शेयर की कैपिटल कितनी होगी? आंसर इज 1,20,000 into 1 divided by 1/4. Dividing anything by a fraction or multiplying by its reciprocal means one and the same thing. तो आई होप सो सबको ये मैथमेटिकल लॉजिक समझ में आ गया होगा. 1,20,000 into 1 upon 1/4 करिए आप, या 1,20,000 into 4/1 कर दीजिए. So चलन 4,80,000 divided by 20 into 9, 4,80,000 divided by 20 into 6. Z के लिए कोई जरूरी तो नहीं है, but then to we do it upon 20 into 5. तो इसका तो 120 ही आ जाएगा. What will be for Mr. Y? Let's see. 4,80,000 upon 20 into 6 is 1,44,000. 144, and इसके लिए आ जाएगा बच्चों 2,16,000. 16,000. अब ये जो वैल्यूज चिल्ड्रन आपको नजर आ रही हैं, 216, thereafter 144 and children 120, it is in parity with the new profit sharing ratio. अब लड़ाई झगड़े का कोई कारण ही नहीं बचेगा और हमने सो कॉल्ड इनकी कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लिया. तो एक्स की कैपिटल होनी चाहिए न्यू फर्म में 216, वाई की 144 एंड जेड की 120. इतनी बात सबको क्लियरली समझ में आ गई? Yes. Yes. So we can continue writing. Therefore, to avoid such disputes, adjustment of capital is required. Adjustment of capital is required. Heard well, children? Heard well? Yes.
Yes, sir. Yes, sir. अब तरीका तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि भाई हम सबसे पहले कैपिटल अकाउंट्स प्रिपेयर कर लेते थे, कैलकुलेट करते थे एडजस्टेड कैपिटल। एक्स का एडजस्टेड कैपिटल आएगा 180 प्लस 15 195 माइनस 9 इट इज 186। y का चिल्ड्रन 80 माइनस 6 इज 74। z की कोई जरूरत नहीं है बट चलो लिखा है तो लिख लेते हैं। सो मिस्टर x का एडजस्टेड कैपिटल 186 है और न्यू कैपिटल इज 216। ही नीड्स टू ब्रिंग मनी और टेक आउट। फिर से सुन लीजिएगा, प्रेजेंट कैपिटल इज 186 बट इट शुड बी 216, तो ही नीड्स टू ब्रिंग मनी और विदड्रॉ चिल्ड्रन। Bring money. सिंपल एज दैट, ही नीड्स टू ब्रिंग मनी। तो पैसा लाने की जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट टू एक्सेस कैपिटल। तो आप क्रेडिट साइड पे लिख देंगे इसे, क्योंकि बैलेंस शीट में कैश लिखा था तो हम कैश लिख रहे हैं। 30,000 डिफरेंस है चिल्ड्रन। सिमिलरली मिस्टर वाई का कैपिटल इज 74,000 बट होना चाहिए 144, सो ही इज ऑल्सो गोइंग टू ब्रिंग मनी। अगेन एंट्री वुड बी सेम फॉर हिम एज वेल चिल्ड्रन, क्योंकि इसकी भी कैपिटल प्रेजेंटली शॉर्ट है। इट वुड बी कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल। क्योंकि आपने बाय कैश ऑलरेडी लिखा है तो आपको फिर से बाय कैश लिखने की जरूरत नहीं है। सो इट वुड बी 70,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Yes, sir. Yes, sir. Now you will be getting two balance carried down। फिर से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है बच्चों, सेम आंसर आ जाएगा जो आपने न्यू कैपिटल का कैलकुलेट किया हुआ है। सो रीजन शुड बी अंडरस्टूड व्हाई वी आर एडजस्टिंग कैपिटल, नॉट बिकॉज की पार्ट ऑफ द सिलेबस है तो एडजस्ट कर दीजिए। रियलिटी में पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट राइज हो सकता है। So for the purpose of avoiding such kind of dispute children, we adjust what is called as capitals. Understood everybody? Understood? Yes, sir. Yes, अभी मैं sir. इसकी एक तिगड़मी टेक्निक भी आपको बता देता हूँ। 216 plus 3 is 219, 225 हो जाएगा बच्चों। इसकी एक टेक्निक बताता हूँ जिसमें आपको ये कंपेयर करके जर्नल एंट्री वगैरह कुछ लिखनी ही नहीं पड़ेगी। It is 1,50,000 here and it is 1,20,000 here. If the question is silent children, you would do the adjustment of capital using cash or bank. और अगर question exclusively बोल रहा है that adjustment is to be done using current account, तो आप एंट्री करेंगे पार्टनर्स के करंट अकाउंट को डेबिट रेट करके इंस्टेड ऑफ कैश और बैंक। कैपिटल तो रहेगा अपनी जगह पे, सिर्फ कैश और बैंक के थ्रू करंट अकाउंट लिखना है। अगेन इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। सम स्टूडेंट्स अज्यूम कि फिक्स्ड मेथड का क्वेश्चन आएगा तो करंट अकाउंट चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है चलो, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन आपको कॉम्पोजिशन लिख के देगा दैट कैपिटल इज टू बी एडजस्टेड ऑफ द पार्टनर्स यूजिंग करंट अकाउंट्स। तो आप जर्नल एंट्री में जहां बैंक और कैश लिख रहे हैं कंट्रीब्यूशन या विड्रॉल के लिए, आप पार्टनर का करंट अकाउंट लिख देंगे। इसका फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। बात क्लियरली अंडरस्टूड? Yes, sir. इसके बाद बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देते हैं। इट्स 2,16,000, 144 and 120. Please update this quickly children. So let me tell you the trick children जो मैं बोल रहा था आपको। You need not to do any type of calculation like this. अब आप बोलेंगे सर then how we'll come to know कि पैसा आएगा कि जाएगा। आपको ऐसा कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी चिल्ड्रन। बहुत सिंपल होगा, आपको समझना कि पार्टनर विल विड्रॉ द मनी और पार्टनर विल कंट्रीब्यूट। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। सिर्फ और सिर्फ आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा व्हाट इज टाइटल्ड एज
न्यू कैपिटल्स। इसकी भी एक ट्रिक है मेरे पास, एंड द ट्रिक इज, आपने टोटल कैपिटल 480 कैलकुलेट कर लिया। चलो इस 4,80,000 के कैपिटल को आप लीजिए और इसमें से माइनस कर दीजिए न्यू पार्टनर का जो कैपिटल था, दैट इज 120, और आपका आंसर आएगा 3,60,000। और इस 360 को इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग इट इन एनपीएसआर, 480 को एनपीएसआर में डिवाइड किया था, यू डिवाइड इट इन ओपीएसआर। 3/5 और 2/5 कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर एग्जैक्टली 2,16,144 आएगा। कहने का मतलब बिना एनपीएसआर निकाले भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, बट ये लॉजिक केस 1 अगर होगा एनपीएसआर का तभी अप्लाई होगा, और किसी में ऐसा नहीं होता। तो आप टोटल कैपिटल में से न्यू पार्टनर की कैपिटल माइनस कर लीजिए, रिमेनिंग कैपिटल आएगी, डिवाइड इट इन ओपीएसआर, आपका न्यू कैपिटल तब भी आ जाएगा। ये चीज समझ में आई सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान दीजिएगा, एज आई हैव सेड 216 और 144 आप यहाँ पे लिख लेंगे एज बैलेंस कैरेट डाउन, और अब अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो स्टार्ट होगा। चिल्ड्रन 180 plus 12 plus 3 is what? 1,95,000. Very good. 216 plus 3 plus 6 is what? 2,25,000. 2,25,000. Very good, very good. So children, which side sounds short? Credit side. By Credit side. 30,000 rupees. Yes or no? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो क्रेडिट शॉर्ट है, बाय कैश, बैंक या एक्सेस करंट अकाउंट, जो भी आपको बोला जाएगा स्वाद अनुसार आप लिख लेंगे। सिमिलरली, व्हाट इज 70 plus 8 plus 2 चिल्ड्रन? 80,000. 80,000. And what is 144 plus 4 plus 2? 150. 1,50,000. 1,50,000. Very good. So क्रेडिट में 150 है, और सॉरी डेबिट में, एंड क्रेडिट में इट इज 80. Which side is short children? Credit side. Credit side. By what amount? 70,000. 20,000. Simple as that. क्या जर्नल एंट्री लिखने की जरूरत पड़ी आपको? No, sir. नॉट एट ऑल। तो सर आपने पढ़ाई क्यों सिखाई, आपने एंट्री टाइम वेस्ट कराया? नो नो नो। स्मॉल क्वेश्चन आएगा 3 से 4 नंबर का, 1 मार्क का एमसीक्यू अगर आ गया, जर्नल एंट्री आपसे पूछी जा रही है कैपिटल एडजस्टमेंट के कंट्रीब्यूशन की, एंट्रीज तो आपको चारों यही लिखी हुई मिलेंगी, वैल्यू सब में अलग अलग होगी, सही वैल्यू पकड़नी है, और एंट्री कभी आपने जीवन में सीखी नहीं तो आप एंट्री कहाँ से पकड़ लेंगे वहां पे। दैट्स वाई ये पढ़ना भी जरूरी है। तो बड़े क्वेश्चन में ये ट्रिक अप्लाई होती है, बिकॉज जर्नल एंट्री पे आपको बोर्ड एग्जाम में कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि जर्नल एंट्री बड़े क्वेश्चन में पूछी नहीं गई है आपसे, पूछा गया है ओनली रिवैल्यूएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल या बैलेंस शीट। तो आप क्यों फालतू में जर्नल एंट्री करके फिर उसकी पोस्टिंग करके टाइम वेस्ट करेंगे? जस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास 11th, कैश बुक बनाने को जब आता था और क्वेश्चन में लिख के आता था कैश सेल्स, आप दिमाग में जर्नल एंट्री करते थे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आई रिपीट, आप दिमाग में जर्नल एंट्री करते थे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और कभी भी आपने लिखी नहीं एंट्री एंड डायरेक्टली आप टू सेल्स पोस्टिंग करते थे। तो कुछ वैसा ही कॉम्पोजिशन है। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? चिल्ड्रन Yes. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का सबको ये बात समझ में आई? हाउ वी डिड Yes, दिस? sir. कंफर्म? Yes, sir. तो इसे प्लीज अपडेट कर लीजिए, जो ये मैंने ओपीएसआर में कैपिटल निकाला, चिल्ड्रन काम की चीज है। तो लेट्स गेट बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन दैट वी वर डूइंग फॉर दिस वन, और आप मेरे को बस ये बताएंगे व्हाट वाज द क्लोजिंग बैलेंस कमिंग फॉर मिस्टर एक्स एंड वाई। चिल्ड्रन, एक्स और वाई का क्लोजिंग बैलेंस क्या आ रहा था बच्चों? 1,86,000 and 74,000. चलिए, वेरी गुड। सो चिल्ड्रन, यहाँ पे क्वेश्चन साफ साफ आपको लिख के दे रहा था दैट कैपिटल ब्रॉट इन माय मिस्टर जेड इज 120, बट मेनी अ टाइम्स मिस्टर जेड की कैपिटल आपको पता ही नहीं होगी। तो डोंट अज्यूम दैट द क्वेश्चन इज रॉन्ग। जेड की कैपिटल आपको क्वेश्चन कैलकुलेट करने को बोलेगा, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? So it was how much children? 1,86,000 and 6,000. Y का 74 था, isn't it?
Yes, sir. चलिए, सो चिल्ड्रन इतना पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट रीड्रॉ कर लीजिए और हेडिंग लिखिएगा फाइंडिंग द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर. दिस पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट नीड्स टू बी रीड्रॉन. हेडिंग लिख दीजिए पहले, फाइंडिंग कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर. सो दो कॉन्सेप्ट्स हैं यहां पे भी. मिस्टर जेड का शेयर इन प्रॉफिट्स कितना था चिल्ड्रन? व्हाट वाज चिल्ड्रन जेड्स शेयर इन प्रॉफिट्स? 1/4. चलिए, तो क्वेश्चन आपको लिख के देगा जेड ब्रिंग्स 1/4 ऑफ द कंबाइंड adjusted capitals. या क्वेश्चन आपको लिख के दे देगा Z brings 1/4 of the total capital, या लिख के दे देगा क्वेश्चन आपको Z brings proportionate capital. तो ये भी अगेन कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है. X का एंड Y का कैपिटल आप ऐड कर लेंगे. 186 plus 74 is how much children? Like 60,000. Very good. और Z का कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होगा कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल इनटू शेयर ऑफ न्यू पार्टनर. So it is 2,60,000 into 1/4. So 260 into 1/4 would be 65,000. 65,000. जो भी वैल्यू आएगी आप यहाँ पे प्लॉट कर दीजिएगा. इतना सबको समझ में आ गया? Yes. और सेकंड केस में आपको कैसे कैलकुलेट करनी है कैपिटल, मैं पहले आपको फॉर्मूला बता देता हूं, फिर मैं आपको उसका डेरिवेशन भी बताऊंगा. अगेन एग्जाम में आपको डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं होता है, बट आपको पता होना चाहिए. सो Z ब्रिंग्स 1/4 ऑफ द टोटल कैपिटल. सिंपल है चिल्ड्रन. Z की कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगी? कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल 260 है, Z का शेयर है 1/4. तो चिल्ड्रन रिमेनिंग शेयर कितना हो गया? 3/4. 3/4. और इसका रेसिप्रोकल कितना होगा बच्चों? 4/3. 4/3. वेरी गुड. तो आप जरा 2,60,000 का 1/3 कैलकुलेट कर लीजिए, फटाक से आंसर आ जाएगा आपका 86,667. और इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक अप्लाई होता है, और वो लॉजिक कुछ खास नहीं है. इट इज बेस्ड ऑन अलजेब्रिक इक्वेशन ओनली चिल्ड्रन. Or logic goes somewhat like this. Let Z's capital be X. इसका मतलब ये नहीं let Z's capital be X's capital. तो Z's capital equals to 1/4 of total capital. Z की कैपिटल X मान ली, तो X equals to 1/4 of X का कैपिटल था 186, Y का कैपिटल था 74, और इसका पता नहीं है तो X मान लिया. X equals to 1/4 into 2,60,000 plus X. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4X equals to 2,60,000 plus X हो जाएगा. 4X minus X equals to 2,60,000, and X equals to 3X equals to 2,60,000, and finally children X equals to 2,60,000 upon 3, and your answer is this. Approach is well understood by all. Yes, sir. Yes, sir. एक और तरीका सीख लीजिए, एक और तरीका सीख लीजिए, अच्छा लगेगा आपको. मिस्टर जेड का शेयर 1/4 था चिल्ड्रन, तो रिमेनिंग शेयर 3/4 है. तो अब लॉजिक अप्लाई करेंगे कि अगर 3/4 शेयर की कैपिटल
2,60,000 है तो 1/4 शेयर की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? तो इट इज 2,60,000 into 1/4 upon 3/4. Again I'm solving it here. तो ये बनेगा बच्चों 2,60,000 into 1/4 into 4/3. Again it is 86,667. समझ में आई बात? Yes, sir. पक्का? चलिए Yes. be quick children, be quick. So children, question number 20th से लेकर 25 तक you are supposed to attempt. I'll check them और फिर मैं कल आपको further homework assign करूंगा. From 26 dash I hope so it is till 56 और 60 कितना है? 59. नहीं 63 तो अभी सामने गया, 63 तक चलो ठीक है, ये मैं आपको कल असाइन कर दूंगा. ओके चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे. एनीबॉडी हैविंग एनी क्वेरी कैन आस्क मी.